Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Konaxia High Flyers. Friends, in these episodes, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we talk to you about these companies, about their company's business model, their growth journey, their future plans. And in this process, we make a effort to talk to the promoters of such companies. And today, friend, we have got a very interesting company which operates in a very niche space and which is going to hit the SME capital market very soon. The company's name is Aluwind Architecture Limited, and we have the privilege and pleasure of having two senior members of the team. We have Mr. Murli Manohar Kabra, who is the managing director of the company, and we also have Mr. Govinda Kabra, who is the chief marketing officer of the company. Gentlemen, आप दोनों का बहुत स्वागत है. Thank you very much for sparing your valuable time. आई एम प्रीटी श्योर काका जी कि आज के जी छोटे से इंटरव्यू में हमको आपके साइड से अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी विच विल हेल्प आवर इन्वेस्टर्स टू नो योर कंपनी इन अ मच बेटर मैनर. मुरली जी, पहला सवाल जो आपको है, हमको आपकी कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल के बारे में समझाइए. क्या बिजनेस है, कहाँ में हमारी जो कंपनी की पोजीशनिंग है इस सेगमेंट में वो किस तरह से है, और थोड़ा-सा आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी के बारे में बताइए. ये बिज़नेस आपने कभी शुरू किया था? आप कब से आपने, वेदर ये आपका फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है या आपके फादर से आया है? तो इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी हमको बता दें. सर, ये मेरा कंपनी जो है 3 डेकेड से है और ये मैंने खुद स्टार्ट करी है कंपनी. एंड जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से इस कंपनी को मैंने स्टार्ट करके और फिर बाद में हम लोग तो धीरे-धीरे हर स्टेज पे कंपनी को मॉडर्नाइजेशन में गए. Company mainly specializes in the segment of manufacturing and installation of diverse aluminum products range like windows, doors, curtain walls, louvers, and various different other related products. Our products are meticulously designed and crafted in a way that meets the unique demand of architects, consultants, uh, big builders, corporates, institutions. We have a cutting edge 45,000 square feet facility in Pune, which is a highly tech driven facility. It helps in it has various advanced machineries like CNC machines, uh, powder coating machines, and other pneumatic machines, which helps in precision manufacturing of our products, which is highly required in our line. We have our in-house development and design and development team, which provides solutions for the projects which are under considerations, which helps us our marketing team to secure big and large projects. In 2020, we have a collaboration with strategic collaboration with Eternia, a brand of Hindalco Aditya Birla Group. We position ourselves as a anchor partner for Eternia products in the MMRDA region. ठीक है. आई थिंक थैंक यू गोविंद. Murli ji, second question to you is if you could tell us something about the overall industry, the facade and penetrations industry. इसके बारे में सर कुछ बताइए. और इस इंडस्ट्री में what is the positioning of our company? If you could throw some light. Yeah, so basically, our industry at the moment stands at 23,000 crore as of this year, which will grow as the real estate demand is there for next another 8 years, and which will grow up to 45,000 crore between the year 24 to 2032. So, अच्छा मुरली जी, हमारा जो क्लाइंट एक्सपोजर है, आर वी ज्योग्राफिकली लोकेटेड लार्जली इन वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया, या वेदर वी आर प्रेजेंट पैन इंडिया, इसके बारे में बताइए. देखिए, हमारा जो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पैन इंडिया में है, बट वी कैटर मैक्सिमम इन वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि हमारी यहाँ पे फैसिलिटी भी है, सर्विसेज भी है. तो वैसे साउथ एंड अदर अब एरिया को भी हम कैटर करते हैं. ओके, तो बेसिकली ज्यादातर वेस्टर्न इंडिया में प्रेजेंस ज्यादा है हमारा. यस, यहाँ पे ज्यादा है. ओके. तो
ओके, उसके बाद मुरली जी मेरे को बताइए कि सर हमारे कोई मार्की कस्टमर्स यानी कोई वेल नोन कस्टमर्स आप बता सकते हो जिससे हमको पता चलेगा कि कौन-कौन से कॉर्पोरेट्स यस, के लिए हमने काम किया है, उसके बारे में यस। बताइए। नहीं, हमारे जो मेन कारपोरेट क्लाइंट्स हैं लाइक L&T, पीरामल्स, रुस्तम जी, सुप्रीम, और तो अपना रुनवाल, गेरा, एमेनोरा, रहेजाज, ये सब क्लाइंट हैं। और और हमारा जो मॉडल है बिजनेस का, हम लोग उनको बेटर सर्विसेज अपना देते हैं और रिपीटेड ऑर्डर इन इन एस्टीम क्लाइंट से हमको मिलता रहता है। बिल्कुल। और नॉर्मली मुरली जी एक सवाल जो एडिशनल इससे मुझे पूछना है कि हमारे बिजनेस में ऑर्डर बुक्स तरीके से बिजनेस आता है, लाइक मान लीजिए आपने बोला रिपीट बिजनेस आता है, तो इज इट अ ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस? और सेकेंडली सर प्राइसिंग जो होती है फाइनली जो कस्टमर को हम ऑफर करते हैं कि भाई उनको विंडोज डोर्स या फसाड बनाना है, तो सर प्राइसिंग किस प्रकार से होती है? इज इट टेंडर बेस्ड और प्योरली क्लाइंट के रिलेशनशिप के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब के एक साथ आप प्राइसिंग करते हो? नहीं, इसमें क्या होता है कि एवरी प्रोजेक्ट हैव तो डिफरेंट अपना रिक्वायरमेंट। तो इन लोगों की क्योंकि हमारा इन हाउस अपना डिजाइन एंड कॉन्टेक्स्ट टीम है, तो हर प्रोजेक्ट में एक अपनी यूनिक तो रिक्वायरमेंट आती है। तो उस हिसाब से हमारा अपना डिजाइन टीम उस प्रोडक्ट को डेवलप करता है और फिर इन लोगों को कॉस्टिंग देते हैं। और एज पर प्रीवियस वर्किंग, तो हम लोग इन लोगों से थ्रू आर्किटेक्ट कंसल्टेंट तो निगोशिएट करके वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को फाइनल करते हैं। बिल्कुल। और नॉर्मली मुरली जी नॉर्मली एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमको कितना समय लगता है? मोटा-मोटी अगर आपको 1 या 2 कंपनी के प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो कितने टाइम फ्रेम में ये काम आपका कंप्लीट होता है? या प्रोजेक्ट की साइज के हिसाब से है। बेसिकली 6 महीने से लगभग 1 डेढ़ साल भी लग जाता है। तो हाई राइज ओके, टावर, बिकॉज हम लोगों का जो स्पेशलिटी है वो हाई राइज टावर की है। तो ओके, उसमें जैसे जैसे इन लोगों की वो टाइमलाइन को सिंक्रोनाइज करते हैं हम लोग। हमारा प्लानिंग अपना डिपार्टमेंट है और फिर हम लोग वो टाइम के हिसाब से प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक अच्छी तरह से आपने समझाया। गोविंदा जी अभी अगला सवाल आपको है कि बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है? हाउ मेनी प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री ऑपरेट? इज इट अ लार्ज सेगमेंट वेयर मेनी प्लेयर्स ऑपरेट और देयर आर फ्यू प्लेयर्स? And secondly, Govinda ji, I want to understand that what is so special about our company, that is it the delivery, is it the quality, is it the relationship with the client? So qualitatively, how do we do things better for the client? इसके बारे में सर कुछ बताइए। So basically, sir, our company, the whole segment for the windows and facade, it is very scattered and unorganized sector. There are very few large players which are settled or which are big. Otherwise, it is a very small players are there. We have a experienced management team which deal with we have experienced all the projects since past 30 years, so which helps us, which is a very strong point for our company. Also we have a collaboration and partnership with Eternia, which is a brand of Hindalco Aditya Birla Group, which positions are in our market as an anchor partner, and Yeah. which is a very another strong point for our company. Okay. So basically, you say you enjoy a very strong track record. You got a very good anchor partner in the form of Eternia, and plus, Yeah. past track record is very important. That is one of your basic, Yes. qualitative strengths, which normally customers see. Because I'm quite sure, Govinda ji, people definitely must be seeing your past projects and your track record, and then obviously, Yes. business becomes much more easy. So fine, understood. अब मुरली जी थोड़ा बहुत कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए। हमने FY23 में किस प्रकार का रेवेन्यू और प्रॉफिट किया? फर्स्ट हाफ अभी FY24 तो खत्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो प्रोस्पेक्टस में नंबर दिए हैं, उसके हिसाब से हमको बताइए सर सितंबर तक क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट आया? तो उसके बारे में ज़रा बताइए। ओके सर, FY22 में हम लोगों ने 29 करोड़ का अपना रेवेन्यू था। देन FY23 में हम लोगों का तो रेवेन्यू
49 करोड़ हुआ, जो कि 69% जम था। एंड ऑलरेडी FY अपना हाफ ईयरली ऑफ दिस 23 September till our revenue already disclosed as a 41 CR, and वो अपना second half will be a new record high. ओके। और सर प्रॉफिट कितना था? आई मीन अगर आप प्रॉफिट बताओगे पहले 6 मंथ्स में कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया? फर्स्ट 6 मंथ में 3.7 CR था। ओके। दिस 23 FY में। और पिछले साल पूरे साल का कितना प्रॉफिट था? पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था लगभग 2.7 CR था। ओके, तो बेसिकली अच्छी इंप्रूवमेंट आई है पहले 6 मंथ Yes, में, sir. बहुत अच्छी Yes, sir. इंप्रूवमेंट आई है। और आपका Correct. मानना है कि सेकंड हाफ भी हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, यानी मार्जिन्स को लेके, टॉप लाइन को लेके, तो इसमें आपका क्या मानना है? Yes, second line means second half अपना will be अपना better. We will give a new record high of this thing. अच्छा मुरली जी, अभी थोड़ा सा पब्लिक इशू के बारे में बताइए कि कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, तो कितना बड़ा पब्लिक इशू है, हम पैसा कितना उठा रहे हैं और किस ऑब्जेक्टिव से पैसे लेते हैं, इसके बारे में सब कुछ बताइए। देखिए, हमारा पब्लिक इशू 28 मार्च को स्टार्ट हो रहा है और ये पब्लिक इशू 4 अप्रैल को क्लोज होगा। एंड टोटल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पब्लिक इशू इज मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल टू फिलफिल आवर अपना मतलब बिजनेस अपना रिक्वायरमेंट and company performance to aid the company performance for the the further profitability. तो ये मोटा मोटी कितने पैसे आप उठा रहे हो वो मुझे पूछना था। हम व्हाट इज लोग द टोटल 29.7 करोड़ का पब्लिक इशू है ये। ओके, समझ ये ठीक है। अच्छा मुरली जी, एक सवाल है, अभी आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, फॉर दैट यू आर रेजिंग पब्लिक इशू। मुझे बताइए नॉर्मली हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? मान के चलिए आपने प्रोजेक्ट ले लिया, एग्जीक्यूशन कर लिया, तो अपने को कस्टमर से कितने दिन के बाद पैसे मिलते हैं? वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना होता है? जो डेटर्स है वहाँ हमारे को 60 to 90 डेज की डेटर है। एंड जो इन्वेंट्री साइकिल है हमारा वो लगभग 70 से 90 दिन का है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन मार्केट, इफ यू लुक एट कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ये जो अभी आप प्रोडक्ट बनाते हो इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। तो गोइंग फॉरवर्ड, इफ द कंट्री ग्रोज, अगर जीडीपी हमारा 6-6.5% ग्रो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो इसका मटेरियल इम्पैक्ट हमको डेफिनेटली मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 ये आप मेरे को बताइए। और सेकंडली, कैन वी एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ? लाइक मुरली जी वाज सेइंग लास्ट ईयर 23 के लिए 63% ग्रोथ था टॉप लाइन में, 24 के लिए भी बहुत अच्छा नंबर फर्स्ट 6 मंथ्स में आ गया है। So can we assume that this growth momentum will be maintained by our company over the next, say, 2 to 3 years in terms of top line growth? If you could share your thoughts. No, it will be maintained like this only. Okay. Basically, Because top line real estate में अभी strong ये डिके जो है वो अपना रियल एस्टेट में तो रियल मतलब स्ट्रांग डिमांड है। Okay. और Govinda ji, one thing which I wanted to ask you is that since you are the chief marketing officer, tell me one thing in terms of the marketing strategies. What are the marketing strategies which the company follows? Like, of course, Eternia is a very big plus point for our company. But apart from that, how do we present our product in a different way to the customer so that we get closer to the customer? There are more conversions happening with the customers. If you can tell us. Yeah, so basically, we have our wide range of marketing team which are vastly experienced in this line and the product range, and they meet the architect and the consultants, because in this segment, facade consultant and architect do play a huge role in converting to get the big projects. And we are having a deep relationship. Even the Kabraji has been working since last 33 years, so their experience and overall our marketing team experience, that we are getting it, and we are meeting the architects, consultants and the big corporates. And also we in the back end we have huge projects which we have completed,
which helps us securing big orders from the same client or the new client. Okay. I think understood. Very nicely articulated by you, गोविंदा जी. मुरली जी, आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप 30 साल से ये कंपनी चला रहे हो, आपने बहुत कुछ देखे, चैलेंजेस भी देखे होंगे, तो मेरे को बताइए मुरली जी, सबसे बड़ा चैलेंज आज तक आपने कौन सा फेस किया? कोविड को छोड़ के ऐसा कोई समय था जहाँ पे आपको कंपनी को बहुत नीचे से ऊपर उठाने में आपने बहुत एफर्ट कर दी, और सबसे बड़ा रिस्क हमारे धंधे में क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क इन आवर बिजनेस, वो जरा बताइए. देखिए, पहला रिस्क तो इफ रियल एस्टेट में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या कुछ आए तो वो ही एक रिस्क है. अदरवाइज वी आर अपना लुकिंग, रियल एस्टेट बहुत स्ट्रांग है. दूसरा बेनिफिट क्या है कि वेस्टर्न इंडिया इवन कंट्री में रीडेवलपमेंट बहुत हो रहा है. दैट इज एंड स्मार्ट अपने सिटी का भी तो प्रोविजन गवर्नमेंट ने किया है, तो डिमांड बहुत ह्यूज है. तो वहां से कहीं कोई मतलब विजन ऐसा समझ में आता है नहीं कि कहीं कोई अपना डिमांड में कहीं कमी आए. तो बेसिकली हम ये समझ के चले मुरली जी की धंधा स्टेबल है. अगर रियल एस्टेट मार्केट कंटिन्यू होता है ग्रो करने के लिए, तो हमारा ग्रोथ भी काफी अच्छी तरह से ग्रो होगा. रियल एस्टेट मार्केट फॉर्चुनेटली अच्छे सिचुएशन में है, तो अगर रियल एस्टेट मार्केट अच्छा ग्रो करता है तो आपको डेफिनेटली ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो यही मैं मान के चलता हूँ. सेकेंड मोस्ट की आज हमारी कंपनी की जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो 125 करोड़ प्लस है, जो हमारी फैक्ट्री को रन करने के लिए मोर देन 1 ईयर का ऑलरेडी एंगेज्ड है फैक्ट्री. नहीं, बिल्कुल. आई थिंक आपने अच्छा बोला कि कम से कम 1 साल की विजिबिलिटी तो कंफर्टेबली है आपके पास, क्योंकि ऑर्डर बुक भी अच्छी है. और मेरे ख्याल से रियल एस्टेट मार्केट जब तक चलेगा तब तक मेरे ख्याल से फसाड और ये जो एक्सटीरियर जो बिल्डिंग्स के लिए आज जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, इसमें डेफिनेटली अच्छी खपत होगी. तो एनीवे, मुरली जी, गोविंदा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम. सर, बहुत अच्छा लगा हमको, छोटे समय में अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी. तो बेस्ट विशेस टू यू मुरली जी, फॉर यू एज वेल एज फॉर द एंटायर मैनेजमेंट टीम, और आपके पब्लिक इशू के लिए मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you very much, sir.